Okay. Uh, just prior to minutes, we were talking of location strategies. Today, we are going to talk about the next thing that would be of interest. Again, we are concentrating on the 10 points that we noted about operations management very early on in the course. Right. So अभी तक हमने क्या क्या डिसाइड किया है? We know the type of business we are going to do. Yes, we haven't discussed the product design section, but because we had done that over the last 4 years, I thought it's not important to discuss the product design section. Similarly, we haven't discussed the process design section, but again, we studied courses, manufacturing processes, production automation, where the process design was discussed in one way or the other. So when we talk of process design, we've acquired the required machinery as well. That is what we are assuming over here. तो जब हम प्रोसेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमने वो जो मशीन्स चाहिए उस पर्टिकुलर काम के लिए वो सब हमने एक्वायर कर ली हैं, हमने ऑर्डर कर दी हैं। उसके बाद हमने लोकेशन चूज़ कर ली है। लोकेशन चूज़ करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने वो लोकेशन एक्वायर कर ली है। अब हमारे पास जगह है जहाँ पर हम अपना प्लांट इंस्टॉल करेंगे। So what's the next thing that we are going to do? Start installation. Yes, sir. हम अगला काम क्या करें? लेकिन हम अब इंस्टॉल करना शुरू करेंगे ना मशीन। अच्छा, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी तरीके से अरेंज कर लें, जहाँ पर जो चीज़ पहले नजर आई वहाँ रख दें, जो बाद में नजर आई वो आगे कहीं रख दें। दैट्स द वे वी शुड अप्रोच इंस्टॉलेशन, और शुड देयर बी अ डिफाइंड मैकेनिज्म, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए। सर एक सीक्वेंस में अरेंज करने पड़ेंगे। सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस हमें कैसे पता चलेगा? सर जो हमारा प्रोसेस प्लान होगा उसके मुताबिक तो जो काम पहले करना होगा वो पहले करेंगे, वो मशीन्स पहले रखेंगे। द प्रोसेस दैट हैज टू बी कैरी आउट which comes first in the process plan, the machine for that should be placed close to where the raw materials are, and then there should be a sequence defined, and the materials should be or the machines and all other stuff around that should be arranged in a definite sequence. That's what you're telling me. ये बात कह रहे हैं ना? Exactly, sir. Okay, right. And this arrangement is what we call layout. The layout is basically the relative arrangement of stuff around you. हम कहते हैं इसका लेआउट अच्छा है, इसका लेआउट अच्छा नहीं है। अगेन जब आप कहते हैं एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करना है तो इसका मतलब इस डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करने से कोई फायदा होगा या नहीं? अगर मैं अपनी तरीके से अरेंज कर देता, बस जो चीज़ पहले नजर आई वो मशीन पहले लगा दी, जो मशीन बाद में आई वो बाद में लगा दी, would that make a difference? Yes, sir. Obviously, it will make a difference. हमारे प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, डिपेंड करता है आपके जो सीक्वेंस है उस। Okay, again, so that again you're telling me the layouts are important. So again, what is the objective of today's lecture? Right, so or discussing layouts. So again, as I said in location, and as I'll be saying in all other things that we talk about during the course of lectures, we want to develop an effective and efficient layout. The screens are visible, right? Oh, that's not okay. That's still not the screen. Okay, so wait, I'll share the screen with you guys. Right, is the screen visible now? Can you guys see the screen? The PowerPoint presentation? Yes, sir. You can, okay. Right, so again, as I was saying prior to sharing the screen, again, the objective of making a layout develop an effective and efficient layout. What is an effective or efficient and efficient layout? A layout that helps us meet our objectives, that helps us in doing what we want to do. Right, and in this case, if it's a production plant, we want to produce as much process of as high quality at the cost, at a minimum cost as possible.
and we feel that layout can help us achieve that. So before discussing layouts related to production setups, let's just talk about layouts in general. And again, look at your surroundings right now. All of you are sitting indoors in your houses, wherever, right? But please look at your surroundings, and things around you have been arranged in a certain manner. So why do you think these things have been arranged in this manner? What did we want to do, or what was the objective while we were placing stuff at places where they are right now? आपके इर्द गिर्द सोफा है या बेड है या टेबल है या कोई और चेयर है, अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो वो इस तरह क्यों पड़ी है, किसी और तरीके से क्यों नहीं पड़ी? क्या मकसद है उनको इस तरह रखने का, कुछ और किसी और तरीके से रखने का नहीं? कैन वी जस्ट कमेंट ऑन दैट? Sir, for the sake of ease and comfort. अच्छा, सो अगेन, तो इसका मतलब है जब हम लेआउट डिजाइन कर रहे होते हैं तो ईज और कंफर्ट को कंसिडर करते हैं. So I just want to talk about factors that we would consider while we are discussing or while we are designing layouts. So ease and comfort has come out to be one. Good. और कुछ? Now, just do not think of your own surroundings right now. Think generally of everywhere that you go. When designs are made, when layouts are being designed, what are the factors that you would be thinking would be considered? Someone said at the very start कि हम एक खास सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. सीक्वेंस में अरेंज करने से क्या फायदा होगा वो प्रोडक्शन सेटअप? उससे कोई फायदा होगा? Sir, approach easy होगी sir. अप्रोच इजी हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब है जो चीजें जहां पड़ी हो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो हम उन पे काम नहीं कर सकेंगे. गुड, वेरी गुड. और सर टाइम सेविंग होगी. अच्छा, वन बाय वन प्लीज, कोई भी एक बोले. सर टाइम सेविंग. एक्स्ट्रा स्पेस कवर ना हो. ओके, टाइम सेविंग कैसे होगी? और समवन सेड एक्स्ट्रा स्पेस. I'll talk with I'll discuss the extra space in a moment. But time saving कैसे होगी? टाइम सेविंग बताओ यार. सर अगर फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट ऑपरेशंस करनी है सर, एक इक्विपमेंट पे या एक जॉब पे सर, तो सर अगर एक सीक्वेंस में मशीन्स अरेंज होंगी तो सर वो हम इजीली वो कर सकेंगे. अगर मतलब सीक्वेंस कोई नहीं होगी तो सर अगर एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर ले तो दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो सर वो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लेगा. ट्रांसपोर्टेशन आपकी बात कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं. यस सर, एग्जैक्टली. ठीक है, सो वी वांट टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मटेरियल विद इन अ पर्टिकुलर सेटअप. आसानी से मूव कर सके. ठीक है, फ्लो ऑफ मटेरियल आसान हो, इससे टाइम सेविंग होगी. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. ओके, एक्स्ट्रा स्पेस. व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा स्पेस? सर अगर हम इस सीक्वेंस से ना रखें जिस सीक्वेंस से पड़ी हुई है तो फिर हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी जो हम और भी यूटिलाइज कर सकें, या बगैर तरतीब के रखेंगे तो फिर हमें बैठने में मसला होगा, इधर उधर घूमने में भी मसला होगा. तो इसलिए एक स्पेसिफिक तरतीब से रखना बेहतर है. नहीं यार, ये देखो, ये मैं दो मशीन हैं लेट्स से. ठीक है, मशीन ए एंड मशीन बी. या चाहे मशीन ए को इधर लिख दूं या मशीन बी इधर लिख दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें स्पेस का क्या काम आ गया जहाँ पर? थोड़ा सा समझाओ. और अगेन आप ठीक बात कर रहे हो, हम सिर्फ चाहते हैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना ताकि थोड़ी सी डिस्कशन ओरिजिनल को थोड़ी सी चीजें हमारे जहन में क्लियर हो. राइट, सो हाउ वुड इट मेक अ डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन ए ओवर हियर आई पुट अ बी? स्पेस की बात है बिल्कुल ठीक, लेकिन थोड़ा सा समझाओ. सर पहली बात तो अगर मशीन्स की है तो फिर हमें इनको बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस रखना पड़ेगा ताकि एक की वाइब्रेशन दूसरे पे इफेक्ट ना करे. दूसरी बात ये कि अगर आप बिल्कुल अटैच भी रखें तो फिर भी प्रॉब्लम होगी. ज्यादा दूर भी रखें तो फिर हमारे पास जो स्पेस स्क्रीन के बीच में है वो वेस्ट होगा और एक्स्ट्रा फिर consider machine utilization while we are filling the space in, but we should not leave too much space in between.
और जहाँ जगह छोड़ेंगे तो हम ये जगह ज़ाया कर रहे हैं. We are not utilizing the space properly. So when we say machine utilization, we'll also say space utilization भी increase करना चाहते हैं. इस तरह कह दें. Exactly, sir. Okay, good. और कुछ? Anything else that you want Maybe to for the design sake in the of layout? innovation. Yes, innovation. So, what kind of innovation? Please elaborate. Kindly elaborate. Process innovation or Yes, so but that innovation brought in the process plan. That's how what I am understanding from what you are saying, right? And then we have to design a layout against that innovation. You might be saying something else, but I'm not understanding. If you can elaborate more, or we can skip to the next point. Again, you were right. I'm not saying you were wrong, but I have failed to understand or put that in proper words. Okay, so what has come up? Ease and comfort, machine utilization, we want to increase that. We want to use as much of the space available. That doesn't mean stack things very close to one another. That means proper utilization. Right? So we don't want a large area of the space available to not to be doing any real work. We are investing money into this space and we want to utilize that space. Then we said increase flow of material. Okay, but not only flow of material, we would be interested in flow of people as well. People should be able to move around easily. No? When we are designing layouts. Yes, sir. Yes, so that's another thing that we consider in layouts. Anything else? What about health and safety? Well, that plays an important role. Just because Yes. if I just keep a table right in the center of the room, I might bang my leg all the time. So yeah. Okay, so health and safety is important. And where do we incorporate that? In layouts, right? Right? A large portion of what you're studying in a parallel course called health and safety is layout related. Where should we put the fire extinguishers, for example? That's a layout issue. Where should they be put? They should be accessible. Okay? We should not put things where we can trip over. We should make safety lines and so on and so on. Right? So health and safety is another factor that we consider while we are designing layouts. Agreed? Precisely. Okay, good. What else? Anything else that comes to your mind? We basically put almost everything, and now another thing that we want to design in layouts is flexibility. Right. When I say it's a flexible layout, we live in a dynamic world. The needs change with time. We should design a layout, or we should, while we're designing a layout, we should consider flexibility into that layout as well. That means if the need changes, we can change the relative arrangement of stuff. And again, I would like you to concentrate on stuff around you again. So in general, the things which are placed in an order, in the arrangement that you see right now, the arrangement might change during winters. Think of your hostel rooms, for example. In winters, you have a different kind of layout compared to summer of your rooms. Do you do that? Yes, आप sir. लोग ऐसा करते हो गर्मियों में कोई और सेटिंग और सर्दियों में कोई और सेटिंग Yes, sir. करते हैं ना ठीक है so what makes it possible for you so you've designed flexibility in your layout imagine that everything that you had attached that permanently to the ground can you change the setting then as the needs change No, sir. no it would be costly to do that again think of your conventional classes so when there were exams we used to have a different layout within the same classroom using the same equipment and when you had your classes the arrangement differed. And how are we able to do that? Because we have designed flexibility
into the layout. So layouts can help us achieve our objectives. A proper layout might help us in increasing productivity. But again, if you guys can recall me and recall the conventional classes with me, one of the first things that I used to do when I enter the class is I change the layout of the class. I would turn on the lights, I would remove the chair or the desk that is placed right in front of the board and put it on one side, and I'll change the position of the dice. So what I'm trying to do, and why do I do that? For the sake of your own comfort? Yes, for the sake of my own comfort, yes. I feel comfortable in that way. Good. Anything else? For being productive? Yes, for being productive. So while I'm delivering the lecture, I know that I'm moving around and I might just trip over. So health and safety is a consideration as well. Right. And then because I'll be conscious of that table or chair while I'm moving around, I would not be able to concentrate fully on the lecture contents. And that's why I just remove it from my path so that I can just concentrate on delivering the lecture. Right. So I feel that makes my lecture more productive. Okay. Again, we'll sometimes close the window. Someone would say, sir, some reflection is coming board, and we'll close the window. And again, that's a layout decision, because that particular, with the window being closed, is a better layout for learning. That's what we feel. So I'm just trying to elaborate on some of the layout decisions that we take and that help us make our lecture productive. Anyways, let's just look at the complete list. I'll upload these slides. I've not been able to do that. I've been kind of lazy after delivering the lecture. So I'll put the complete set of slides on your Google Classroom, inshallah, today, hopefully today, right? But within this week, definitely. Okay, so let's look at the complete list. Okay, what do we design? We've already covered most of it, but let's just see what else can come. So we want to utilize the space properly. That's what we did. Machine means equipment. We want to utilize those equipment properly. We want to utilize the people properly. So we should arrange them in such a way that their utilization increases. Again, we've got improved flow of materials and people. And one thing that flows in offices especially is information. So people who want to communicate with one another, we should make that communication easy, and that's information. Files move from one place to another. We can put that under information as well. And when we've got better working conditions, the morale increases. We want to give them better working conditions and safer working conditions. And that's how is that going to help us? It's going to increase the morale. When we feel comfortable, we are more productive. And again, the example that I would like you to give is related to your classrooms again. So when there were no air conditioners in the first year, the classes in summers were not very good. Neither the teacher nor the students were comfortable, and generally the span of those lectures decreased, and the content that we used to cover not as much. Even if some people were covering the contents, the students could not focus. The morale had decreased. But when we run the air conditioners, after that, put the air conditioners on, we provided you comfort, and that increased the quality of lectures. Agreed? ऐसा हुआ या नहीं? बस ये मेरा परसेप्शन है. हुआ है सब. Yes sir, हुआ है बिल्कुल. हुआ. ठीक है. तो अगेन मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस लेआउट्स की. मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि सर ये बस ऐसी इस चीज को इधर रख दो, इस चीज को उधर रख दो, तो उससे क्या फायदा होगा. We're trying to discuss that. Again, in service sector, layouts can help us increase the customer and client interaction with the customer. So when you go to the bank, the cashier faces the door, faces the outdoor or out window, so that he can interact with the customer. He's not looking inwards, he's looking outwards. And again, what is making him do so is layout. The layout is making him do so. And then finally, flexibility. Right, so these are some of the considerations while we are designing layouts. So what we are going to do today is we're going to talk about, in particular, we are interested in production layouts, production setup layouts. But before we start doing that, let's just talk about simple layouts. So I'll start with an office layout. So let's say you've been asked to design an office
And it's not a single office, office of multiple people, and you've been given an open space. And now you want to design office for different people. Again, the hierarchy is different. You have to design an office for the boss, and you have to design an office for his PA as well. So would you be given equal space to all offices? What are the decisions that we have to make while we are designing an office layout? Just think about it. जब आप एक ऑफिस लेआउट डिजाइन करेंगे तो क्या क्या मेन कंसिडरेशन होंगी आप लोगों के लिए? एक लिस्ट बनाओ और मैं आपसे 1 मिनट में फिर बात करना शुरू करता हूँ. 1 मिनट सोचो और लिस्ट बनाना शुरू करो. आई होप आप लोग पेन और पेपर अपने पास रखते हो when you are listening to me. Yes, I'll talk with you in 1 minute. I'm here, but I'll start talking with you in 1 minute. ओके, तो क्या क्या चीजें? ऑफिस डिजाइन करते हुए क्या कंसीडर करोगे? सर एक टेबल होनी चाहिए, चेयर. रिपीट करो. सर टेबल होनी चाहिए और चेयर्स होनी चाहिए. हाँ, टेबल और चेयर तो होंगे ना, सही है. और लेकिन ऑफिस स्पेस कितनी हो, कहीं ना कहीं उन्हें स्पेस भी एलोकेट करनी है. मैं आपको ऐसा समझिए एक बड़ा सा हॉल दे दिया और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के लिए ऑफिस के लिए स्पेस एलोकेट करनी है और बाकी चीज़ें डिसाइड करनी है. फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइड करना है कि उनके जो ऑफिस में कोई पार्टीशन हो कि नहीं हो, सब लोगों के पास टेबल्स पड़े हों और सब एक दूसरे के साथ अलहदा कमरे किसी को हो या ना हो वगैरह वगैरह, इस तरह के पॉइंट. मतलब ऑफिस टेबल और चेयर होनी चाहिए. एग्री? ठीक है. और कुछ? सर ये ऑफिसर्स सर ये ऑफिसर्स के लिए अलग साइज होगा और अगर उनके असिस्टेंट वगैरह हैं तो उनके लिए अलग साइज होगा ऑफिस का. ओके, हु इज दिस? कौन बोल रहा है? फैज सर. Okay, that's very good, right? So we have to decide how much space should we give to each office, and that would depend on their stature, on the hierarchy of that organization. Good, very good. और सर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सर उनके लिए अपार्टमेंट्स होंगे, मतलब उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी परफेक्ट होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके. और इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन फ्लो वुड बी कंसिडरेशन. वो उसको लेआउट इंश्योर करे कि वो आसानी से इंफॉर्मेशन फ्लो करे लोगों के दरमियान. ठीक है, राइट, वेरी गुड. और कुछ कह रहे थे, बोले सर. किचन में सर सर जितने ऑफिशियल्स होंगे मतलब सीईओज वगैरह हो गए और एमडीज, तो उनके लिए सर अलग डिजाइन होगा. हाँ, ठीक है. So the office space and then the design would vary with as you go higher or lower in the stature. Very good. Who's the other person who was talking? Please बोले. कोई और भी कुछ कह रहा था, प्लीज बोले. सर ये किचन होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, मतलब अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट.
हाँ चलो ठीक है, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर ऑफिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यस ओके, सो वो फैसिलिटीज में आ जाएगा ना कि ये जी फैसिलिटीज सर। प्रोवाइड करनी चाहिए। गुड, ओके मीटिंग गुड। मीटिंग मीटिंग रूम होना चाहिए सर। मीटिंग रूम भी होना चाहिए अगर वो फ्रीक्वेंटली मीट कर रहे हैं। अच्छा, कौन, whom should sit close to whom, ये भी इंपॉर्टेंट है ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो जो रेलेवेंट लोग हैं वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। their offices should be placed closer to one another. Agreed? फॉर एग्जाम्पल मेरे चेयरमैन और मेरे उनके पीए का ऑफिस करीब करीब होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट। और अगर उनका ऑफिस बहुत दूर है तो फिर हम टाइम ज़ाया कर रहे होंगे while they want to talk with one another. समझ आ रही है ये बात? Yes. ठीक है, so you have to identify the relationship amongst the different offices as well. Okay, so there are three physical aspects, and again this is not an exhaustive list. मैं complete मैं हर वक्त बताता रहता हूँ, जो कुछ मैं बताता हूँ या डिस्कस करता हूँ ये कंप्लीट लिस्ट हो ही नहीं सकती। ये बस वो मेन पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो हम ये देखते चलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वुड मीन हु सिट्स क्लोज टू होम, किसका ऑफिस किसके करीब हो। ठीक है, सेकेंडली हम प्राइवेसी में इंटरेस्टेड हैं, हम कितनी प्राइवेसी प्रोवाइड करें, सबको अलग-अलग कमरे दे दें या नहीं। कुछ लोगों के लिए अलहदा ऑफिस और अलहदा कमरे हों और कुछ लोग एक बड़े हॉल में बैठे। ठीक है, यू गो टू अ जनरल ऑफिस, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में गए और ऑफिस देखें तो हर बंदे का अलहदा ऑफिस नहीं होता, एक बड़ा कमरा होता है उसमें मल्टीपल टेबल्स पड़े होते हैं। देखा आप लोगों ने ऐसा कभी किसी को इत्तेफाक? यस सर, बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल ठीक। ओके, सो दैट्स प्राइवेसी रिलेटेड। अगेन, क्या हमें बिल्कुल प्राइवेसी नहीं देनी चाहिए? समटाइम्स दैट्स बैड एज वेल। Too much flow of information is not required as well. People start talking and talk all kind of stuff. So one way of doing that is we put partitions between offices, but partitions which are not complete rooms but half heighters. ठीक है, अगर आप ऊपर गए हो, आलमजेब साहब का ऑफिस देखा हो आप लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे, अदनान भी उधर ही बैठता है आजकल। Yes, sir. है, गए गए आप लोग, विजिट किया है? यू मस्ट Yes, हैव। sir. गए। बिल्कुल। जी सर। So again that's a large room, but we put again उन partitions का साइज रूम के साइज के बराबर ही है तकरीबन। बट इमेजिन करो कि उनको हम आधा काट दें हाइट वाइज, तो फिर वो कंप्लीट रूम नहीं है लेकिन वो पार्टीशन है। वो ऐसी पार्टीशन है कि अगर जो भी उस ऑफिस में बैठता है वो बैठा होगा तो दूसरे को नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो बात करना चाहे तो you can stand up and then talk with the other person. So that's something that we do as well in offices. Okay. So how much access should we give people to office? Permission is another issue. Controller of exam, that's an area where we do not want too many people to come in. So that's a permission, and we've designed that. We've put that on one side of the university. बिल्कुल एक साइड पे कोने में बनाया हुआ है ताकि ज्यादा लोगों के रास्ते में ही ना आए। So again, layout consideration थी when we were giving a space to the controller of examinations very early on in the development of this university. So how much closeness, proximity, privacy, and permission are issues. Again, what is most important? The flow of information. And now that we live in a digital world, this flow of information can take place electronically if you can provide them with the right equipment. So physical proximity is not as important these days as it used to be. हम लोग बहुत दूर हैं इस वक्त इस मुल्क के या इस शहर के, इस सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, but we're still trying to we're trying to ensure that information is flowing from us from one side to another instead of thinking of conventional classes where we were close to another. Yes, that's a not, मैं 10 दफा मैं हर क्लास में कहता हूँ ये perfect replacement नहीं है, लेकिन that's the only option that we have. Okay, the flow of information is important, and I just wanted to discuss this. Okay, let's move on to another layout. Do you know what a warehouse is? Warehouse क्या चीज होती है? इसने वेयरहाउस का नाम सुना है? यस सर, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं। हाँ, जहाँ पे चीजें स्टोर की इन्वेंटरी जाती हैं और फिर रिट्रीव की जाती हैं, मतलब परमानेंट स्टोरेज नहीं है, कोई चीज स्टोर की और वापस भी रिट्रीव की, जब ऑर्डर आया तो उसे डिलीवर कर दिया। या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों को, वो कहते हैं हम आपके पास स्पेस है और वी वांट टू स्टोर समथिंग एंड यू प्रोवाइड दैट।
Right. Do you know what Amazon is? Amazon का नाम सुना है कभी आपने? यस सर। Amazon क्या चीज है? सर एक वेबसाइट है जिसमें हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। वेरी गुड। तो एक वेबसाइट है जिसमें हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो से आपने एक ऑर्डर कर दिया, Amazon क्या करेगा उसके बाद? आपने जब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको नजर आएगा इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक। इस बात का क्या मतलब है? होता है ना, आप ऑर्डर कर रहे होते हो और आपको आइटम के सामने नजर आता है नॉट इन स्टॉक करेंटली, इन स्टॉक। इस बात का क्या मतलब है? सर या तो आउट ऑफ स्टॉक होता है या इन स्टॉक होता है, तो और ठीक फिर है। आप आगे। तो व्हाट इज आउट ऑफ स्टॉक मीन? मतलब अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो अवेलेबल नहीं है किस जगह पर है? मतलब आपके ख्याल उनके पास एक स्टोरेज फैसिलिटी है ना, जहाँ पर उन्होंने चीजें रखी होती हैं और उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब हुआ ना? यस सर। तो वो एक वेयर हाउस हो गया, क्योंकि मल्टीपल चीजें वहां पर पड़ी होंगी, बहुत से आइटम्स पड़े होंगे, एंड देव गॉट लार्ज वेयर हाउसेस एक्चुअली। Okay, so what I want you guys to do, and I'll discuss this topic, but one of the things that I want you guys to do is read about Amazon. How do they manage their warehouses? Because that's very relevant to what we are studying, operations. ठीक है, तो सब लोग Amazon के बारे में पढ़ेंगे. Okay, that's a homework kind of assignment for you guys. Okay, so when we are designing a warehouse, एक स्टोर को डिजाइन कर रहे होंगे, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, किन चीजों को कंसिडर करेंगे? सर पहले तो एक टाइप के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एक जगह पे होंगे, दूसरी टाइप की दूसरी जगह पे। अच्छा, so we'll allocate definite space to particular items. Why would we like to do that? सर एक्सेस इजीली होगी। Access easily हो। Okay, so what you're telling me is कि हमें चीजें स्टोर तो करनी है, but we have to retrieve them and we should be able to identify them firstly to retrieve them. तो हमें अगर पता हो कि फलानी चीज पर उस जगह पर पड़ी है, तो we'll straight away go over there, pick that item and then deliver it. That means we don't want to reduce the time and cost of retrieving a particular item. अगर चीजें बस ऐसे हैपेसेडली पड़ी होंगी तो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। ये बता रहे हो ना आप मुझे? एग्जैक्टली सर। ओके, तो आप सब लोग नोट्स होते हैं आप लोगों के पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, एंड यू आर स्टडीइंग लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड यू स्टोर दोज आइटम्स समवेयर इन योर कैबिनेट. यू गाइस डू दैट राइट, और समवेयर इन योर रूम? यस सर। तो आप में से कितने लोग उन्हें हैपेसेडली अरेंज करते हैं, कितने लोग बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं कि कुछ भी चाहिए होता है तो फौरन उस पर्टिकुलर आइटम को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो? हाउ मेनी ऑफ यू प्लेस देम हैपेसेडली, और जब कोई चीज चाहिए हो तो फिर सब कुछ निकालते हो और ढूंढ रहे होते हो? मैं आप कर रहे होते हो, तो ये अच्छी चीज है या नहीं? सर टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आधा घंटा जो आपने पढ़ना होता है वो आधा घंटा तो आप ढूंढने में लगा देते हो, और फिर आप कहते हो चलो अब कल देखेंगे। रफली आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ exaggerate stuff. So okay, so think of this as a small warehouse. This is a small warehouse for you, where you keep your notes of all kinds, books and notes of all kinds. But it's very costly for you to retrieve items. Although an item is available, it's difficult for you to find an item, and sometimes you might not be able to find that item at all, in time. तो कस्टमर को, वो पर्टिकुलर क्लाइंट को आप प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते. ओके, एनीवन हु अरेंजेस देम प्रॉपर्ली? है कोई ऐसा? मुश्किल है, लेकिन चलो देखते हैं. Probably no one. Okay, so no worries. But that's okay. So we call this the material handling cost. What I was talking about over here is called the material handling cost. Now that we increase the scale, okay. So what are the costs associated with material handling? Incoming transport. When you want to place an item, how much labor and time and cost do you pay for that item to be placed within the warehouse? Then the cost of storage.
Again, different items need different amount of care, and the items that need more care would have a higher storage cost. हम ये भी तो इंश्योर करना चाहते हैं ना कि आइटम्स डैमेज ना हो, खराब ना हो while they are in the store, otherwise वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, ठीक है. Then the cost of finding and moving that material, and then the cost of transport outwards towards the customer. All of this comes under the material handling cost. So while we are designing warehouses, we should make the layout in such a way that the material handling cost decreases. Okay. One of those ways can be कि हमारे पास in और out gates different. अच्छा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक पार्किंग लॉट नजर आ रहा है? आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So I just wanted to show you this. जब हम वेयर हाउस की बात करते हैं, so we do not arrange stuff only on the floor. अभी तक हम ऑफिस की बात कर रहे थे, so we said floor utilization. लेकिन when you talk of a warehouse, you actually utilize the complete cube of the layout. I tried to draw a rough cube on your screens as well. ठीक है, तो हम सिर्फ इतने एरिया की बात नहीं करते, बल्कि हम चीजों को वर्टिकली भी पाइल अप करते हैं. सही? Yes, sir. Yes, sir. सही है. तो अगेन हम वेयर हाउस क्यों बनाया था? स्टोर करने के लिए ये चीजें. तो जितनी ज्यादा चीजें हम स्टोर कर सके तो उतना ज्यादा फायदा. सही है ना? We made a space and we want to store as much stuff in that, because the more we store, the more we will be better at doing business. If we are renting out certain areas of that space, we'll get more money, more revenue. So the other consideration is we want to store as much stuff in the warehouse as possible. We refer to this as cube utilization. ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सके. Okay. So and we talk in terms of full volume. और layout डिजाइन करते हुए what do we have to do? We have to optimize between these two. वेयरहाउस स्पेस ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सके, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम. एंड दैट्स द चैलेंज. ठीक है. एंड वन ऑफ द वेज दैट वी कैन अचीव दैट इज कि आपको डेफिनेट एरियाज पता हो जहां पर आप चीजें स्टोर कर रहे हैं. So as soon as you want to retrieve an item, you know the exact space where that is placed. You move on to that place and identify that item and transport it outwards. Have you ever visited a medical store? Yes, sir. मेडिकल स्टोर में आप उसको किसी भी दवाई का नाम लेना, तो वो फौरन उस जगह पर किसी खास जगह पर जाता है और वो दवाई ढूंढ के आपके पास ले आता है, और से नहीं अवेलेबल नहीं है. आफ्टर लुकिंग एट अ सर्टेन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप, नॉट द कंप्लीट शॉप. ऐसे करते हैं? Yes, sir. बिल्कुल इस तरह करते हैं. बिल्कुल इस तरह करते हैं. तो वो दुकान का लेआउट कुछ इस तरह का है कि उनको पता है कि कौन सी दवाई कहाँ पड़ी हुई है, और तो कोई खास चीज नहीं है ना. Yes, sir. So all medical stores would have a definite layout. So how do you think that they arrange the medicine? Sir, maybe formula wise. अच्छा, कभी गौर नहीं किया आप लोगों ने? Use के मतलब Alphabetical. Alphabetical order में arrange कर रहे होते हैं वो, right? So next time you visit a medical store, you check. So it's an alphabetical order. So when you ask for a medicine, they know exactly where that is placed. So that reduces the time they would take to deliver or to address the needs of a particular customer. Otherwise, had they not been doing that, तो फिर वो क्या करेंगे? पूरी दुकान में हर दवाई को फेंकेंगे और आखिर में कहेंगे नहीं ये हमारे पास नहीं है. That would have been very costly. So just wanted to highlight this material handling aspect again. समझ आई ये बात? Yes, sir. ठीक है. So again,
बहुत ट्रिवियल चीजें बात कर रहा हूँ, बहुत आसान चीजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि so that I can then talk of this production setup. Okay, another way in which we can manage layouts or warehouses again. So if you've gone to a medical store again, in general, now what they do, you ask for a medicine and then they'll put that medicine in the name of that medicine in their computer and then tell you, is it available or is it not available? They would not go to that particular place physically, but they'll just check in the computer first and then say, okay, we've got this or we haven't got this. ऐसा कभी किसी को इत्तेफाक हुआ? अगर आप बड़ी फार्मेसीज में जाओ, खैर अब छोटी फार्मेसीज में भी ऐसा ही है। सर लाइब्रेरी में ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, लाइब्रेरी भी बिल्कुल ऐसे काम करती है। गुड एग्जांपल, राइट। लाइब्रेरी वाला भी चेक करता है हमारे पास स्टॉक में है या नहीं है, और फिर वो किताब जाके उठाता है, और उसने भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट की हुई है, वरना वो सारी किताबें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। आप भी कोई बुक ढूंढने जाते हो तो यू नो दिस इज द शेल्फ यू हैव टू लुक एट, यू नॉट लुक एट other shelves within the library. That's a kind of warehouse. That's our library is a warehouse. It's a good example of warehouse. And again, we put things vertically upwards as well. हमने सिर्फ जमीन पे नहीं रखी हुई, books have been their partitions and we're taking things vertically as well. So an example of warehouse. So when we do that electronically, if you can find items electronically, that's helpful as well. तो डेफिनेट स्पेस नहीं लोकेट करें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम RFIDs इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर शायद हमें अलहदा शेल्फ स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अलहदा शेल्फ स्पेस में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर एक आइटम को हमने स्पेस एलोकेट कर दी लेकिन वो आइटम इस वक्त स्टॉक में नहीं है, तो वो जगह प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही होगी, यू कैन पुट सम अदर आइटम इन दैट प्लेस, बट वी ओनली डू दैट इफ वी गॉट RFIDs, किस तरह इलेक्ट्रॉनिकली उनको फाइंड करने का तरीका आता हो। एंड ऑल ऑफ दिस यू गाइस आर गोइंग टू रीड अबाउट इन Amazon, ठीक है, तो यू रीड अबाउट Amazon, there are certain videos available as well. If you go to those videos, you'll have a better idea. So I just wanted to emphasize on warehouses because that's an important part of what we do. Stock में क्या चीजें अवेलेबल हैं हमें पता होनी चाहिए। Right, let's just move on. Production automation का कोर्स पढ़ा आप सब लोगों ने? Right. Yes, All sir. guys have studied production automation, right? Production automation में आपने 3 तरह के production setups पढ़े थे, कौन कौन से? You said job shop production, batch production, mass production. याद है? Yes. Right. So what is job shop production? सर वो कस्टमाइज्ड होते हैं सर, उसमें हम प्रोडक्शन उसकी सिर्फ करते हैं, कस्टमर आइडेंटिफाई कर दे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो। यस सर। हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। गुड, और कुछ बताओ। सर इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 1 to 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस। ओके, अगेन 1 to 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, बट अगेन दिस 10 is not a very clear boundary. अगर 10 से 11 हो जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जॉब शॉप नहीं रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। नो सर, लो, लेकिन रेफरेंस के लिए 1 to 10 का नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए 1 to 10 का नंबर इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेट बाउंड्री। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। गुड, ओके सर। व्हाट एल्स? सो लो क्वांटिटी, क्वालिटी हाई होती है सर। हाईली कस्टमाइज्ड, व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स दैट कम्स? क्वालिटी हाई होती है। क्वालिटी हाई होती है। अच्छा, डिबेटेबल है लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल। हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल बट Variable. राइट। ओके, कोई एग्जांपल दो यार, मुझे और समझ नहीं आ रही। कोई प्रोडक्ट बताओ जो जॉब शॉप में बनता हो। जी बोले सर ये बुगाटी कार हो गई सर। सर बुगाटी लैम्बोर्गिनी कार्स वगैरह सर। बुगैटी हो गई, चलो ठीक है। और हाँ, लैम्बोर्गिनी हो गई, बुगैटी हो गई, सही है, आगे चल रहे हैं। और कुछ सही समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। सर स्पेस, मुझे नहीं पता फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन। स्पेस कैप्सूल सर। सर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली वेरी करते हैं सर। इज एन एग्जांपल। ओके, वेरी गुड। और सर फॉर एग्जांपल अगर नासा के स्पेस शिप्स वगैरह। प्रोडक्ट डिमांड हैवी वेरी करता है।
और जो कपड़े वगैरह अच्छा, बनते हैं ये इस बात से परेशान नहीं हो कि 4 लोग एक साथ बोल पड़ते हैं। Say that again. और मैं कह रहा हूँ जो हम कपड़े पहनते हैं दर्जी से बनवाते हैं जो हाँ, लेकिन वो तो कोई 100,000 जोड़े बनाते हैं, वो हाईली कस्टमाइज्ड इस सेंस में होता हाँ है कि सर तो थोड़ा सा वही साइज चेंज होता है, बस द सेम शलवार कमीज और द सेम काइंड ऑफ ट्राउजर दैट वी जनरली। सर जी सर ये अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल वो कार भी बनाती है और ट्रक भी बनाती है, तो इसमें सर ग्रेटर डिफरेंस होगा उनके प्रोडक्ट में। तो ये एक एग्जांपल है सर जॉब शॉप की। लेकिन जिस असेंबली लाइन पे कार बना रही होगी उसी नो असेंबली सर, लाइन पे अलग जनरली होगी। ट्रक नहीं बनाती होगी, ट्रक के लिए एक अलग असेंबली लाइन बनाएगी मेरा ख्याल। अगेन आपने कोई असेंबली लाइन देखी है? आप एटलस गए थे, होंडा एटलस गए थे? यस सर, गए थे, बाइक्स देखा। वाला प्लांट, राइट। तो अगेन वो एक डेफिनेट स्पेस होती है ना, तो गाड़ी का जो स्पैन है और जो ट्रक का स्पैन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो जनरली एक लाइन पे पॉसिबल नहीं होता कार और ट्रक को मैन्युफैक्चर करना। इन जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे पास एग्जांपल्स में आए ये नहीं सर फलानी कंपनी ऐसा करती है, ठीक है, राइट, ओके। सर अगर अगेन आई एम कस्टमर नॉट को सेइंग सर यू आर अगर रॉन्ग। कोई ओके तभी तक एग्जांपल सर ये गाड़ियों के मॉडल्स जरा मैं दोबारा बोलता हूँ। स्पेस कैप्सूल की एग्जांपल आई, बुगेट लाई, और हाँ कर रहे हैं आप लोगों ने मुझे कन्विंस करना है कि हाँ ये जॉब शॉप प्रोडक्शन है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से किया, ठीक है, मैं 17 साल पहले पढ़ा था, ठीक है, तो आप मुझे कन्विंस करो कि सर ये जॉब शॉप प्रोडक्शन होती है, तो ये जॉब शॉप प्रोडक्शन होती है। आई माइट बी कमिंग, ताकि मुझे समझ आता है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है। सर ये जॉब शॉप में कस्टमर की तरफ से एक सर जॉब शॉप में जो कस्टमर होता है सर उसकी तरफ से एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिलता है कंपनी को सर, जो जॉब मैन्युफैक्चरर हो, तो सर वो उसी फीचर्स और जो मतलब कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होते हैं उसी के मुताबिक एक सेटअप डिजाइन करते हैं और सर वो प्रोडक्ट बनाते हैं सर। जैसे स्पेस कैप्सूल हो गई और नासा की जो स्पेस शिप्स हैं और कार्स वगैरह डिफरेंट मॉडल्स की, तो सर ये एग्जांपल्स है जॉब शॉप की। राइट, ओके, गुड। हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और स्पेस कैप्सूल या नासा की स्पेस शिप्स, इस तरह की चीजें एग्जांपल्स हैं। और जो लग्जरी कार्स हैं जो एक आधी बनती है, वो भी चलें जॉब शॉप में की एग्जांपल है। वेरी गुड, एनी अदर एग्जांपल? जस्ट गिव मी मोर एग्जांपल, कम आउट ऑफ नासा, गिव मी एनी अदर एग्जांपल। एरोप्लेन, शिप सर। यस सर। शिप्स, ओके, रोल्स रॉयस जो कंपनी है सर एरोप्लेन, वो प्लेन्स भी बनाती एरोप्लेन है को भी सर, और जो बड़ी शिप्स वगैरह होती हैं वो भी जॉब शॉप पे बनती हैं। हाँ गुड। अच्छा, वो सर ये रोल्स रॉयस का जरा असेंबली प्लांट देखेंगे, किसी और वीडियो देखेंगे और देखेंगे। अच्छा, इन जनरल आप लोगों ने बहुत शुरू में कहा, first person who talked with me during this particular course, he said we'll arrange items in a particular system, machines in a particular sequence, so that material can flow easily. So the job would be processed at machine A and then at machine B and then at machine C. याद है आप लोगों को बात? 1 घंटा पहले रफली हम लोगों ने ये बात की थी, यस सर। याद है ना? बिल्कुल, गुड। अच्छा, जब जॉब शॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? ये जो स्पेस शिप बना रहे हैं या ये जो जेट बना रहे हैं या अच्छा रोल्स रॉयस की एग्जांपल है, ये एक मशीन पे प्रोसेस है और फिर पूरा जहाज आगे चला जाता है और थर्ड मशीन पे प्रोसेस होता है, इस तरह काम होता है। नो या सर, नहीं, फिक्स्ड ये लेआउट होता है। मशीन को मूव करके जहाज तक ले आते हैं।
मशीन को सर सर मूव ये करके मशीन को मूव करते हैं और फिक्स लेआउट। लेआउट फिक्स नहीं होता सर इसमें। लेआउट सर हम डिफरेंट मशीन्स को मूव कर सकते हैं सर, ये फ्लेक्सिबल होता है सर। जनरल पर्पस मशीन्स हम इसमें यूज करते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो लेकिन ठीक है। ओके राइट। सो अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों को बात समझ में आई, कुछ लोग अभी दोबारा सुने। इन जनरल जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हम जो मटेरियल है, द जॉब इज मूव फ्रॉम वन वर्क सेंटर टू अनदर वर्क सेंटर। एग्रीड? दैट्स व्हाट कम्स टू आवर माइंड इमीडिएटली व्हेन समवन सेज प्रोडक्शन। Okay, in this, when we're making a spaceship, for example, that's a very large structure. So do we move the spaceship from one work center to another work center to another work center for that ship to be made? Or do we move the machines? We bring the machines to that particular location and the spaceship is located at a particular location all the time. Sir, the machine job and resides- workers are moved to a particular location. It is fixed at a particular location. Okay, Lukman. सर इसमें जॉब जो होती है सर वो फिक्स्ड जगह पे हम रखते हैं सर, वो मूव नहीं करती सर। डिफरेंट मशीन्स को हम जॉब की तरफ मूव करते हैं तो वो डिफरेंट ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड। ये वाला फीचर आप में से कितने लोगों ने मुझे बताया जब मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि मुझे समझाओ और मुझे समझाओ? तो ये तो एक समझाने की चीज थी ना यार। सर हम एग्जांपल्स का सोच रहे थे इसलिए। नहीं तो मैंने तो आप यू स्टार्टेड विद हाईली कस्टमाइज्ड एंड हाईली कस्टमाइज्ड, but you did not bring in this point that it's this kind of production, the product remains at a particular position. Should have talked about this. नहीं, important points नहीं। आप इंटरव्यू में जाओ और कोई आपसे पूछे जॉब शॉप प्रोडक्शन को डिफाइन करो और आप ये बात ना बताएं तो क्या आपने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी? You say yes or no. यस सर डेफिनेटली। नो सर, अगर हम लेआउट का नहीं बताएंगे तो नहीं दी। नहीं दे दी ना। तो अगेन यस यू कैन नॉट सी मी एंड आई कैन नॉट सी यू, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं आप लोगों को क्यों इस तरह क्लास ले रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कहता हूँ माइक्स खरीदो और मेरे साथ मुझे जवाब दो। ये जो स्लाइड्स हमें नजर आ रही हैं वो हमसे हम हार्डली रीड कर रहे हैं, बस हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो नजर आ रही है, उसमें इंफॉर्मेशन है, बट वी वांट टू डिस्कस दिस अमंग्स आवरसेल्व्स एंड व्हाट वी नोट इज कि जो कुछ हम पॉइंट लिख रहे थे ना वही पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में ऑटोमेटिकली आ गए। इसका मतलब हमें ये बातें पता है, बट वी शुड बी एबल टू टेल द राइट पॉइंट। अगर मैं आपको 1 मिनट दूंगा तो आपने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है। इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दोगे तो टाइम जाया होगा। बट so we have to improve our interviewing skills as well. Okay, when someone asks us for information, we have to give him the right information first, the most important information first, and then the less important information. But anyways, what we've realized is the product remains fixed. Has any one of you ever seen a fixed position layout, a job shop production setup? Any one of you? यस सर। कहाँ देखा आपने? सर जो रेलवे इंजन पे जो काम होता है सर वो वहाँ पे रहता है। वहां पर देखा। तो आपने वहां इंटर्नशिप की थी? क्या किया था? जी सर, लोकोमोटिव फैक्ट्री में इंटर्नशिप की थी। तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करो, क्योंकि हम में से कभी किसी ने नहीं देखा ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये जब इंजन ओवरऑल हो रहा होता है तो किस तरह, या बन रहा होता है तो किस तरह काम हो रहा होता है। सर तो जी सेम ही होता है सर। इंजन एक ही जगह पे खड़ी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम होता है, फिर जो इंजन का काम होता है तो वो सभी उसी जगह पे एक ही जगह पे खड़ा होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली टीम काम कर रही होती है, और जब बॉडी पे काम हो रहा होता है तो डिफरेंट मशीन आती हैं और वो बॉडी पे काम कर रही होती है। तो जिस तरह का काम होता है ना। जी सर। सही। तो अगेन, तो अगर मैं तस्वीर खींचूं जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा होगा तो लेआउट डिफरेंट हो जाएगा ना उस एरिया का। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन नजर आ रही होंगी, कुछ और लोग नजर आ रहे होंगे, और जब डेंटिंग वगैरह का काम हो रहा होगा तो एक डिफरेंट सेट ऑफ सेटअप होगा, मशीन डिफरेंट होंगी उसी एरिया में, तो तस्वीरें एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी। एग्रीड? जी सर। राइट। इसका मतलब है ये लेआउट है तो फिक्स पोजीशन, जगह तो वही है, लेकिन लेआउट डायनामिक है, इट चेंजेस विद टाइम। जी सर। आर यू एग्रीइंग विद मी या नहीं? बस वैसे ही जी सर कह रहे हो? नहीं सही है, एग्री कर रहा हूँ सर। ओके गुड। ओके, तो एक एग्जांपल बहुत अच्छी। कौन था वो टॉकिंग विद मी? हमजा। Hamza, okay, Hamza. So yes, right. Now, anyone else who's ever seen a fixed position layout?
सर ये जो सर मुख्तलिफ ये किस्म की सर ये जो मुख्तलिफ किस्म की छोटी मशीनें बनती हैं लेथ मशीन पर और इस तरह की सीएनसी मशीन पर, सिर्फ एक ही मशीन जो है उनको बनाती है। हाँ, लेकिन लैथ मशीन तो मूव नहीं करती ना, वो जॉब वहां पर आती है और उस पर काम किया जाता है ना, और जब वो हो यस जाती सर। है तो आगे चले जाती है। तो ये तो फिक्स पोजीशन ना हुआ ना, ये तो वर्क सेंटर पे प्रोडक्ट आया, मटेरियल आया, और वो मटेरियल जब उस पर काम हो गया तो वो आगे चला गया, ओके सर। है ना? सर सही है, समझ आई ना? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। और कोई और बोल रहा था? सर ये सर नेशनल ये जियोग्राफिक पे बोइंग जो नेशनल जहाज क्या? बनता है सर हाँ 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 हाँ, वो भी वो देखा था एग्जाम्पल है, सर आपने नेशनल। देखा कभी? नहीं मैंने तो सर वो टीवी पे देखा था। अच्छा गुड, वेरी गुड, सही है। राइट, एनीवन एल्स? सर मैं भी यही एग्जांपल दे रहा था सर, मैं कांटास एयरक्राफ्ट की एग्जांपल दे रहा था, टीवी पे देखा था मैंने भी सर। ओके, तो टीवी पे देखना, यूट्यूब पे देखना अच्छी चीज है और आप लोग देखोगे, लेकिन आपने कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी है? यस सर। सब लोगों ने? यस सर। Okay, I'm not saying you have to see that 8 to 40 days for 1 year. Just you pass by a place and a building is made over there. Okay, so what happens? What are you making? The building. And does the building move from one station to another station, or does it remain fixed? इट रिमेन फिक्स सर। It remains fixed. Okay, so एक चीज जरा टिक हो गई ना हमारी। अच्छा, हाईली कस्टमाइज्ड बनती है, हर एक बंदा अलग डिजाइन बनाता है। यस सर बिल्कुल। ओके गुड। क्वांटिटी? एक ही सर होती ये है। तो डिपेंड करती है। यार एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 5 बना लेंगे एक साथ, 5 प्लाजे एक साथ खड़े कर लेंगे, 5,000 तो नहीं बनते ना एक साथ। जी सर। ओके गुड, राइट, ओके। एंड व्हाट हैपेंस, थिंक अबाउट द लेआउट। जब बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है? वी ले द फाउंडेशन, देन डिजाइन बनता है। बुनियाद डाली जाती है ना, ठीक है। उस वक्त डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन वहां लाई जाती हैं, क्रेन्स लाई जाती हैं, वी ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ स्टील and lots of cement so that we can put that steel into the dug area and we can make the foundation strong. Agreed? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद जब बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो आपको उसी एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स नजर आते हैं और ब्रिक्स नजर आती हैं, बहुत ज्यादा सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड नजर आती है। ऐसे ही होता है। यस सर। अच्छा, फिर जब बिल्डिंग तैयार होने की करीब हो जाती है, जब ढांचा बन जाता है, जनरल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और हम इंटीरियर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको इसी एरिया में फॉर एग्जांपल सैनिटरी वाली बहुत सी चीजें नजर आएंगी, वॉशरूम्स बनाने के लिए, ठीक? यस सर। Yes, so what is happening to the layout? It's changing, it's dynamic with respect to time. We have to arrange all of that stuff in that particular area, and that's the only thing that we have to do. We have to make sure that areas that we want to work in are accessible. We want to make sure that equipment and the material that is needed should be available or should be somehow placed in that fixed area. So it's an example of a fixed position layout. So next time someone asks you, आपने कोई fixed position layout देखा है, तो आप सब लोग कहोगे yes. ठीक है, ठीक है, तो चीजें। यस सर। ओके गुड, ओके राइट। अच्छा, हैव यू सीन, सबसे एक चैलेंज है फिक्स पोजीशन लेआउट को, हम क्योंकि डायनामिक है तो मुख्तलिफ वक्त पे द रिक्वायरमेंट चेंज एट डिफरेंट टाइम एंड हेंस we have to arrange, somehow make sure that we arrange the required items in that fixed area. Again, have you guys seen how the BRT is being made? BRT बनते हुए भी देखा है ना आपने पिछले 2-3 सालों में। फिक्स पोजीशन लेआउट की एग्जांपल है? यस जी बिल्कुल है। अच्छा, आप लोगों ने देखा जब ये ब्रिजेस बना रहे थे, ठीक है, ओवरहेड्स बना रहे थे, तो ये जो स्लैब्स इन्होंने डाले ये साइड के ऊपर नहीं बनाए, कहीं और से बनते थे और they were transported to that particular area where they had to be installed. Anyone who noted that? Yes. जी सर देखे हैं। ठीक है, तो again it's very difficult to do all the stuff on site.
So what do we do in case of making in fixed position layouts? Whatever can be made off-site, away from that particular site, we make that off-site, and that reduces the time we'll need to do the work. इमेजिन करो ये सारे स्लैब्स भी इसी एरिया में बन रहे होते, तो जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल रही थी वो भी ना चलती ना. बिल्कुल सर. बिल्कुल. So we try to make as much stuff off-site as possible. So let's just now discuss this fixed position level. Okay, the product remains in one place and workers and equipment come to the site. We've already identified. What are the complicating factors? Why are they difficult to design? We've got limited space at that particular site. Different materials are required at different stages of the project, and the volume of materials needed is dynamic. We'll need a different volume at different stages as well. Might be of the same material. For example, when we are putting on the roof, we need lots and lots of cement. When we're making the walls, we do not need as much cement as we need when we are putting the roof in. अगर आप लोगों ने कभी गौर से घर बनते हुए देखे हैं, बिल्डिंग्स बनते हुए देखे हैं, we've already discussed these points. That's why I've just very quickly gone through the slides. Okay, तो जॉब शॉप प्रोडक्शन को बस साइड पे रखते हैं. मैं समझ आ गई कि जॉब शॉप प्रोडक्शन क्या चीज है, और डायनामिक लेआउट होते हैं. अब दो तरह की प्रोडक्शन बाकी रह गई. कौन कौन सी प्रोडक्शन सेटअप? मास प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन. तो पहले मास प्रोडक्शन की बात करते हैं. मास प्रोडक्शन क्या चीज है? तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक ही किस्म की प्रोडक्ट की हम जब बनाते हैं तो वो मास प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्ट टाइप रिमेन्स द सेम. व्हाट रिमेन्स द सेम? सर प्रोडक्ट टाइप सेम रहता है जनरली. सर हमारे पास वो वेरी नहीं करता प्रोडक्ट टाइप, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. हाई वॉल्यूम है एंड वेरी लो वेरिएशन है. ठीक है, वेरी लो वेरिएशन है, वैरायटी बहुत कम. एक ही प्रोडक्ट और उसी प्रोडक्ट की स्मॉल वेरिएशंस बन रही होती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है. वेरी गुड. और कुछ बताओ. Right, so that you're telling me a particular kind of product is being made. When a particular product is made, that means we'll identify, make the process plan for that particular product only. Yeah, so we know the product in when we want to carry out mass production. So mass production facility के example दे सकते हो मुझे? Sir, packing of different goods और वॉशल वगैरह जो बनते हैं, मैकेनिकल नट्स एंड बोल्ट्स. नट्स एंड बोल्ट्स की कोई इंडस्ट्री आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हो जो सिर्फ नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है? नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब नाम अगर किसी का पता हो. नहीं पता. और बिल्कुल ठीक है. और कोई एग्जांपल? सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. जनरली वैरायटी में चीजें बनाती है. बहुत सी दवाइयां नहीं बना रही होती, वैरायटी ज्यादा है ना यार. सर लेकिन वॉल्यूम भी तो सर वो ज्यादा बनाते हैं सर. एक ही टाइप के, मतलब लेट्स सपोज पेनाडोल की सर टेबलेट्स हो गए तो सर वो क्वांटिटी भी तो ज्यादा बनाते हैं फिर. लेकिन बस स्टिल बैचेस में बनाते हैं ना. अगेन डिबेटेबल है. मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली वो बैच है या डेफिनेटली मास है. डिबेटेबल है. हो सकता है मास प्रोडक्शन कह सकते हैं. अगेन ये सिर्फ टर्म हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर बाउंड्रीज नहीं है कि यही मास है और यही बैच है. समटाइम्स इट्स कंफ्यूजिंग. ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड. ओके सर. राइट. ओके, so but we'll stick with the basic definition that you said. High volume and very low variety. When we say very low variety, that means we know what is the product. So when we know the product, we know the sequence in which operations have to be carried out. Very start of this particular lecture today, आप लोगों ने मुझे यही बात की थी. सीक्वेंस पता होगा और हम उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. याद है ये बात? यस सर. 1 घंटा 10 मिनट पहले आप लोगों ने ये बात की थी मेरे साथ. When we started off layout, that's the first thing that came up. So that means we were talking of layouts for mass production. So let's say these are again machines A, B, and C. This is in, and we've arranged them in the proper sequence. And this is out. This is out. Out means the final product would be available once it has been worked on work center C. This is in. This is where the raw materials come in.
So for a product to be made, it has to go to work center A, and then it has to go to work center B, and then it has to go to work center C. ऐसे ही बनेगा ना प्रोडक्ट, अगर ये हमारा प्रोसेस प्लान डिफाइन करें। यस सर, ये हमें समझ आती है, ठीक है, राइट। अगर हम वर्क सेंटर बी पे ना जाएं तो क्या वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा? नो सर, नहीं बनेगा। So in a mass production facility, we know that the product, all work centers, for it to be made. Okay, right. Again, we arrange all the equipment in a sequence that is defined by that particular product. That only exists for that particular product. हमने जब लेआउट डिजाइन किया तो हमने प्रोडक्ट ज़हन में रखा ना। यस सर, सही है, ठीक है। तो इस तरह के लेआउट को हम कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। प्रोडक्ट, अ लेआउट दैट हैज बीन डिजाइन्ड keeping in mind that particular product. So we are investing in a particular product. Understood? यस सर, Okay, good. So नाम इंश्योर करना चाहता था, आपको समझ आ गया। जब हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम किस तरह की मशीन्स लेंगे? जनरल पर्पस मशीन्स लेंगे या स्पेसिफिक मशीन्स लेंगे? स्पेसिफिक सर ये स्पेसिफिक मशीन्स होंगी। वेरी गुड। तो स्पेसिफिक मशीन्स रिलेटिवली कम कॉस्ट की होंगी ना कंपेयर टू जनरल पर्पस मशीन्स। सर ये हाई कॉस्ट होती है। हाई कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगी। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी बात ठीक है अगर हम एक एंगल से देखें तो, ठीक है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमें एक 2 इंच डाया सिलेंडर को प्रोसेस करना है, ठीक है, ना उससे बड़े साइज को ना उससे छोटे साइज को। तो हम एक ऐसी मशीन लेंगे ना जो 2 इंच सिलेंडर साइज को प्रोसेस कर सके। हम उसके साथ ऐसे लेंगे साथ एक्स्ट्रा जिग रखते हैं जिसमें उससे बड़ा सिलेंडर भी फिट होता है। तो कौन सी वाली अच्छी होगी? सर लेकिन वो हमने पढ़ा था कि ये फिर जनरल मशीन में नहीं आती, हम फैक्ट्री को स्पेसिफिक ये मशीन बनाते हैं, उसका हम उनको डिजाइन और लेआउट खुद देते हैं, तो वो अपने बैच से हट कर फिर हमारे लिए मशीन बनाते हैं, तो इसलिए ये महंगी होती है। अच्छा, अगर हम कस्टमाइज करवा रहे हैं तो, लेकिन इन जनरल हम हर वक्त अगेन अगर हम कस्टमाइज मशीन बना रहे हैं तो ये उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर वक्त कस्टमाइज मशीन ले रहे हो। वी कैन बाय स्टफ फ्रॉम द शेल्फ एज वेल, ठीक है, रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। बट इट इज कस्टमाइज तो आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा था, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। ये बात याद रखना। अच्छा, कौन था ये? Who was talking with me? मिनहाज? यस हारिस माज। हारिस, ओके, ठीक है। तो हारिस, ये बात याद रखना। तो आपने मैं ये क्या बताया कि जब प्रोडक्ट होता है हाईली कस्टमाइज्ड होता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। यस सर। Okay, good. Right. We will go back to that point as well later on. Okay. Anyway, so specific machines. What about the labor skills? हमें लेबर की हाई स्किल्स चाहिए होंगी जो कोई भी जॉब कर सके, या अगर इट इज एबल टू डू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब दैट इज रिक्वायर्ड, वो उतनी स्किल्स काफी होंगी। नो सर, वो हम वेटिंग सर हाईली स्किल्ड बंदे की जरूरत नहीं होगी सर, मे बी सर, क्योंकि वो हाँ बस वो अगर वो काम कर सकता है तो ठीक है। अगर हमें आज बंदे से हमने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ानी है तो बस ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ा सकता है तो काफी है। जरूरी नहीं कि उसे हीट ट्रांसफर आती हो, सही है ना? यस सर, सही है ना? तो कम स्किल वाला बंदा भी चलेगा इसमें, मतलब एक पर्टिकुलर स्किल आती हो जो भी, चलो यार दोस्तों हमें हीट ट्रांसफर पढ़ानी है तो बस हीट ट्रांसफर आती हो तो उसे खैर मटेरियल्स के बारे में कुछ पता है या नहीं पता, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। गुड, राइट। तो जब स्किल लेवल्स कम चाहिए होंगे, व्हाट अबाउट द यूटिलाइजेशन? ये मशीन्स और ये लोग हर वक्त काम कर रहे होंगे। मास प्रोडक्शन फैसिलिटी है ना? यस सर, इसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी। वेरी गुड, यू आर टचिंग द राइट नोड्स अगेन, वेरी गुड टर्म। यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी तो
बेसिक कॉस्ट कम है और यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? की कॉस्ट कम होगी फिर। कम होगी, very good, because you're making the same product again and again and we are getting good at that, and that would mean we don't have to customize our facility for a particular product and the cost of that product would decrease. So it's a low cost facility, which means it's a good facility. Mass production facility अच्छी होती है investment के लिहाज से, ये मतलब हो गया ना? यस सर। गुड, वेरी गुड, राइट, ओके। तो जब हम लेआउट डिजाइन करेंगे तो लेआउट डिजाइन करते हुए हमने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हाउ मच टाइम डज ईच वर्क सेंटर टेक। लेट्स से वर्क सेंटर A takes 7 minutes and work center B takes 10 minutes to process that particular job. So what do you think would happen? B has to wait for that product to be made. जब A काम खत्म करेगा तो B को वेट नहीं करना पड़ेगा, A का काम खत्म होगा और B अभी पुरानी जॉब पे काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर चीजें स्टैक होना शुरू हो जाएंगी, पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही होगा। यस सर। पढ़ा था आप लोगों ने, ये प्रोडक्शन ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर सेट। यस सर। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग। ब्लॉकेज नहीं, तो ब्लॉकेज नहीं है, वो 7 मिनट में काम खत्म हो गया, अगला अभी फारग नहीं हुआ, तो यहाँ पर चीजें पाइल हो रही हो शुरू हो जाएंगी, इसको आप क्या कहते हैं? बफरिंग सर। हाँ, बफर, वन ऑफ द फेवरेट टर्म्स ऑफ योगा। ठीक है, आप हर वक्त बफर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। दिस इज अ बफर। इज दिस बफर अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दैट्स माय क्वेश्चन। सर ये तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टाइप पे सर, क्योंकि जब बी के लिए 10 मिनट्स रिक्वायर्ड है तो सर वो तो 10 मिनट्स से कम टाइम में वो काम कर ही नहीं सकता, तो सर हमें डेफिनेटली बफर की जरूरत होगी। तो सर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज तो बेटर है। अच्छी चीज है, अच्छा, राइट। लेकिन जब हमें बफर चाहिए होगा, हमें पता है यहाँ बफर बन रहा है, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो लेआउट रिलेटेड डिसीजन हो गया। ये सर लेआउट भी चेंज होगा फिर। Layout related decision हो गया ना। Now that we know that there would be a buffer that would be needed, so we must allocate some space for that particular buffer. Yes sir. Right. So it affects layout. Process plan would affect layout. Now, while you were designing this, when you're studying this in production automation, आप लोगों ने कुछ इस तरह की बात की थी, even distribution of work. ये even distribution of work क्या चीज थी? कहीं उसी कोर्स में प्रोडक्शन ऑटोमेशन में आप लोगों ने कहीं पढ़ा था। What is the term? यानी even distribution of work? सर याद नहीं है सर। सर ये सर किसी और मशीन पे जॉब ट्रांसफर करना। सेम मशीन पे सर ये जॉब को ट्रांसफर करना, मतलब अगर ए प्रोसेस कर ले तो सर ए को 3 मिनट्स, मतलब बी को जब 10 मिनट्स उसका टाइम है सर मशीन बी का, तो सर 10 मिनट्स लेगा। ए 7 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद किसी और मशीन पे हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे मजीद प्रोसेसिंग के लिए, पैरेलल में मशीन लगाएंगे सर। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये 7 मिनट को हम 8 कर दें और ये इसका थोड़ा सा काम उठा के इसे दे दें और ये भी 8 मिनट हो जाए, फिर बफर क्रिएट नहीं होगा, बल्कि हमने टाइम वर्क को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं आप। मतलब बेशक आप एक पैरेलल मशीन की बात कर लें कि वो ज्यादा टाइम ले रहे थे, हम यहाँ पर 2 मशीनें लगा दें ताकि बफर ना मिले, बल्कि हम काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। आप ये कह रहे थे, बट am I close to what you were trying to say or no, I'm far off? सर ये जो आपने सेकंड स्टेप में बताया सर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ये पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल मशीन हो जाए। लेकिन अगर ये कि ह्यूमन कंट्रोल हो तो हम पर्सन बी का थोड़ा सा काम पर्सन ए को भी तो दे सकते हैं ना। मतलब पर्सन बी का पहला काम ये है कि उसने एक सेंटर मार्क लगाना होगा, क्योंकि उसने वो ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो अगर हम पर्सन ए को कहते हैं कि आप सेंटर आप फाइंड करके दे दो, तो थोड़ा सा टाइम बी का बच जाएगा और थोड़ा सा टाइम ए का ज्यादा हो जाएगा। ये सर ये भी एक अल्टरनेटिव है।
ये भी किया जा सकता है ना, राइट? सो व्हाट डू यू यूज्ड टू कॉल दिस? आप इस काम को क्या कहते थे व्हेन यू वर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क इवनली? आपका पेपर में क्वेश्चन भी आया था इसको। ये एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है ना, और मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से होती है, एक को हम फैब्रिकेशन लाइन कहते हैं और वी कॉल द अदर वन एन असेंबली लाइन। Right. So what is the difference between a fabrication and a line and assembly line? An assembly line is spaced by work task. It's generally controlled by humans. Fabrication line is machine based. Machine की speed पे capable है काम करने के। That would define. That's what we call a fabrication line. Fabrication line machines के through control होती है और assembly lines humans के through control होती है। लेकिन both type of lines must be balanced. तो आप लोगों ने assembly line balancing पढ़ा था? यस सर पढ़ा था। तो बिल्कुल आप यही काम कर रहे थे। तो जब आप वर्क को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे एंड यू नो दैट वर्क इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, you need not allocate too much space to these buffers. Yes or no? Yes, sir. Sir, can you repeat? अच्छा, अगर आप इवनली स्पेस कर दें, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें काम को, जब लाइन्स को बैलेंस कर दें, तो इन बफर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम स्पेस को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर हम इनके दरमियान ये स्पेस बढ़ा दें तो तब भी ये हमारे बफर जो हैं फिर नहीं इस्तेमाल होंगे। नहीं, लेकिन वो तो फिर आप अपनी प्रोडक्टिविटी कम कह रहे हैं। अच्छा, ये 7 मिनट में कर लेते हैं, अब इसको पूरे प्लांट का चक्कर दो ताकि 3 मिनट और ज़ाया हो जाए और फिर वो पार्ट बी तक पहुंच जाए। आप इस तरह कह रहे हो? बफर्स नहीं लगाएंगे, वो वहां पर हमारी बफर नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बंदा उस पार्ट को लेके पूरे प्लांट में फिरेगा ताकि 3 मिनट ज़ाया हो जाए और फिर ये पार्ट बी तक, वर्क सेंटर बी तक पहुंच जाए। दैट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन। सर जब तक परफेक्टली बैलेंस नहीं होगा, परफेक्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तब तक हमें बफर्स की जरूरत होगी। हाँ, बट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द बफर्स। 7 और 10 में बहुत डिफरेंस है, और ये 8 और 9 हो जाए तो बफर का साइज कम होना शुरू हो जाएगा ना। यस सर। And that's what we want to do. Ideally, we should make a line completely balanced. Yes, complete balance might not be possible. But we can approach that perfect balance. Okay, so that affects layout. So one thing is related with the other one, right? So what have we concluded? So this aspect we've already studied, assembly line balancing. That's why I'm not going to talk about how do we design product-oriented layouts. The product-oriented layouts, assembly line balancing is one of the things that is related with product-oriented layouts. Now, the product that we get in a product-oriented layout in a mass production facility is of low cost. So should we make all products in mass production? हर तरह का प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में भी बनना चाहिए ना, अगर उसकी कॉस्ट कम आती है तो। यस सर। तो क्या हम हर तरह का प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में बनाते? नो सर। नो सर, स्पेसिफिकेशन हम डिफरेंट किस होती वक्त मास प्रोडक्शन में बनाएंगे? जब उसकी डिमांड इतनी होगी कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके। यस सर। अरे ये बात समझिए। वेट अ सेकंड, कासिम चुप हो जाओ। Okay, so let's just identify when should we invest in a particular product. Please note that we are investing in this particular product. अगर ये product market में नहीं बिका तो ये हमारी सारी investment ज़ाया हो जाएगी। So when do we invest in a product-oriented facility, in a mass production facility? When we know that the volume that we are going to sell is sufficient to justify this particular investment. So what I'll try and do now is I'll try and plot for you the life cycle of a particular product. The product has a life as well. We've seen lots of products that are not available, that were available 5 years back, but not available anymore in the market.
फॉर एग्जाम्पल LCDs थी जो हम लगाया करते थे हर जगह पर, अब वो LCDs हार्डली नजर आती हैं. We put LEDs in our homes, in our offices now. है ऐसे? यस सर. Yes, ठीक है. sir. तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, कम या ज्यादा, वो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. But let's just have a look at that product. So I'm putting sales on the y-axis and I'm putting time on the x-axis without any scale. So when a product is, we develop a new product and we put it into the market, would the sales be very high at that particular instant? हर प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में तो सेल्स क्या बहुत ज्यादा होती हैं उसको या नहीं? No, sir. ग्रेजुअली ग्रो करती हैं. Gradually grow करती है. ठीक है, तो हम एक इस तरह की लाइन लगा लेंगे जो सेल्स को आइडेंटिफाई करे. राइट, तो कुछ इस तरह का सेल्स का ग्राफ जाएगा. आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बढ़नी शुरू होंगी, टाइम लगेगा लेकिन कुछ सेल्स हम करेंगे ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. ओके, देन द प्रोडक्ट माइट नॉट बी लाइक बाय द कस्टमर. ऐसा हो सकता है कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, तो फिर क्या होगा, उसकी सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगी और प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाएगा. ऐसा हुआ, ऐसा होता है प्रोडक्ट्स के साथ. यस सर. Yes, sir. तो मतलब इसको कभी भी मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको बहुत हैवी लॉस होगा. I'll give you an example. Some 3 years back, yes, probably 3 years back, I think it was Fanta who was trying to introduce 3 new flavors into the market. Fanta is generally orange, right? Fanta ही थी ना? ड्यू सर, ड्यू. Dew ने भी किया था, चलो Dew की कंपनी. Okay, so Dew wanted to introduce 3 products, and but how did they advertise? They said of the 3 flavors, whichever one of the flavors whom you choose would be available in the market, and will take the other 2 out. ऐसा हुआ, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, वो तीनों फ्लेवर्स मार्केट से गायब हो गए क्योंकि वो कस्टमर को पसंद नहीं आए. उनमें से किसी एक की सेल्स रिलेटिवली बेहतर थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो मास प्रोडक्शन जस्टिफाई कर सके. तो उसकी लाइफ साइकिल को किस तरह की लगी उस माउंटेन ड्यू जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ. आई बात समझ में? यस सर. अच्छा, the other products who are more successful, we like the customers like. जी सॉरी सर, इन केस ऑफ क्यू मोबाइल्स, हर किसी के पास क्यू मोबाइल होता था, मास प्रोडक्शन भी होती थी, लेकिन अभी फिर गायब हो गए सर. उसके लिए लाइन्स डेडिकेट कर दी गई थी. जब उसकी डिमांड बढ़ गई ना जिस भी प्रोडक्ट की, उसके लिए लाइन्स डेडिकेट कर दी गई थी. ठीक है, जो सिर्फ उस प्रोडक्ट को बना रही थी. अच्छा, when the sales increase, when the product is liked by the customer, we say the product is now in the growth phase. ये इंट्रोडक्शन था और ये ग्रोथ है. प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है. जब सेल्स बढ़ रही है तो इसका मतलब है ज्यादा वॉल्यूम चाहिए. जब ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वी शुड नाउ थिंकिंग ऑफ डेडिकेटिंग अ फैसिलिटी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. This is the right time to invest in this particular product. So it's time to identify when do we invest in a mass production facility. आइए बात समझ में. यस सर. ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या होता है प्रोडक्ट का? Let's just complete the life cycle. Then the product gets mature. The sales do not increase, they do not decrease with time. The sales are static at a certain level, more or less static, asymptotic, right? And then the product might just, the sales might just decrease. And we say the product, this is called maturity. And we say this is the decline phase. And the sales start decreasing with time. LCDs introduced हुई, grown की sales mature हो गई और फिर वो decline करेगी. तो एक ऐसा product जिसकी लाइफ साइकिल आपने की. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में हम ये लाइफ साइकिल रिलेटिवली शॉर्ट होता है. अदर गुड्स के केस में हो सकता है वो मेच्योर फेज बहुत लंबे एरिया तक सस्टेन करें. But we still have to bring in innovation one way or the other. So this is the right time to invest in a mass production. That's the other point I wanted to highlight. So let's just see. Let's just read from the slides now and check if I've missed on any of the points or not. Okay, so you guys read it from the slides. I'll try to address the issues of my kids.
मुझसे बात कर ले